In fact, impairment comes with a bad news. It comes with a bad news. India statistics. Impairment comes with a bad news, and this impairment normally takes place whenever the value of the asset reduces. Correct? Symptom like reduction in market capitalization. गवर्नमेंट ने टॉबैको बैन कर दिया तो मशीन की कीमत कम हो गई. करेक्ट. मे बी पॉसिबल दैट एसेट फेस्ड अ बिग एक्सीडेंट, शॉर्ट सर्किट, इम्पेयर हो गया एसेट. उसकी कैपेसिटी अभी काम करने की आदि हो गई. लाइक माई लैपटॉप फॉल डाउन. Now short circuit can be more dangerous. It can destroy the main technical portion of that asset. Possible. Correct. And your asset can lose a value because of a lot of competitors. Airtel and I can tell you this, Vodafone were doing the business like anything, you know. But with the Jio introduction, destructive introduction of Jio, it fell flat. And they have to now calculate the value of their assets. All the licenses and the network system and the tower valuation will come down. This impairment. Bad news. It's a bad news. Factors are there for impairment. Otherwise, depreciation could have taken care of the reduction. A sudden reduction is impairment. It comes with a... It's not by the use. No, not by the use. Or maybe by the too much of use which you could not expected it. A mishandling of a machinery by unskilled worker can lead to an impairment. Suppose you bought a set of furniture of 5 lakh used in office. In office, how they use furniture? Very delicately for the purpose and objective. Correct? They keep books, stationery. They don't bang it badly. But the same furniture, if you keep in schools, correct, they can destroy the benches. They write some bad thing and that leads to impairment. You can replace them now. Correct? It is, in fact, the benches they destroy, they treat them as seesaw sometimes. They sit on that. Correct? So can you define, can we say that impairment is basically reduction in the value of an asset which is beyond repair? Not beyond repair. You can repair and again keep the asset. अगर उसको हम रिपेयर करके दोबारा से पहले से रिस्टोर कर सकते तो फिर वो इम्पेयरमेंट होगा ही. I'll tell you. Suppose a worker has lost a hand in a machinery. Correct? जब मशीन पे के अंदर हाथ आ जाता है, मशीन खराब हो जाती है, मालूम है आपको. So the machine got completely damaged, and you impaired the asset. But after some time you repair that machine. Try to understand. Now when you repair the machine, what entry you pass? Now the machine once again come back to its normalcy. Now when it was damaged, 50% capacity was reduced as per the analysis. So you depreciate, you impaired the asset. But afterwards you found that the machine is again repaired back. Now you can capitalize it. Now you can capitalize it back. You can capitalize it. Capitalization to cash. लेकिन जब वो इम्पेयर हुई, वर्कर का हाथ आ गया, मशीन इम्पेयर हो गई, तो तभी हमने क्या एंट्री पास की? P&L debit to asset. Impair हुई तभी हमने पास किया P&L to asset. Then we had some repairs done on it. As you said. So repair to bank. Machine to bank. Machine to bank. Because the machine come back, once again came back to the life. This repair can be capitalized. Because it's not a genuine repair. This is a bringing the asset back to the life. Which you already impaired it. Which you already impaired it. Suppose year end तक वो machine में accident हो चुका था. Now impaired it. जॉब क्या देगी आप? But next April में उसको बड़ा रिपेयर करवा के फिर एक नॉर्मल से पे लेकर आए, तो you can add back it to the asset whatever you expended to bring the asset to the life. But I fail to understand that if there is a damage to the asset which can be repaired by spending X amount of money, तो फिर impair. एक मिनट, you are seeing only one side of the repair, one side of the aspect. Competition हो गया जबरदस्त, impairment, damage repair कर सकती. हाँ, government has banned few of the asset now. Tell me, can you repair damage? वो एक accident वाले केस में तुमने आंसर दिया. But there are multiple factors which can lead to impairment. यार, you are only seeing one aspect which may be repaired.
Where, ठीक है, there are multiple reasons of impairment, not only that. Or you might have debited a huge pre-operative expenses initially, borrowing cost. Now you can't recover it. क्या तुमने कॉन्फिडेंस लेके ऐड किया था, नहीं हो रहा रिकवर, इम्पेयर करो अभी एसेट. फिर बहुत सारा प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस आपने कैपिटलाइज कर दिया था, कैपेसिटी बहुत बढ़ा दी थी एसेट की बुक में, फिर यू हैव टू नाउ स्ट्रीमलाइन द एसेट. खाली वो रिपेयर वाला एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, एसेट वैल्यू हैज टू कम डाउन समटाइम्स, यू नो. तो impairment comes due to the factors. Fall in market capitalization, government regulations, competition, accident are some of the factors which leads to impairment. ठीक है. So what is impairment? Impairment is nothing but a reduction in the value of an asset. So what entry we pass for impairment? Impairment की entry ऐसी रहेगी, जनरल एंट्री. इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट. सर इम्पेयरमेंट कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा. यस, पीएनएल में जाएगा. लेकिन याद रखो फ्रेंड्स, इफ यू हैव द एक्सेस रिवैल्यूएशन इज अवेलेबल विथ यू, you should use the impairment against the revaluation first, then towards the P&L. First, utilize the impairment loss. First, utilize the revaluation reserve for writing off impairment loss. P&L कर सकते बट पहले revaluation reserve use करो. So how to measure impairment? How to measure impairment? Measurement of impairment. But impairment का measurement कैसे होता है पता है? See, impairment loss is equal to difference between carrying amount minus recoverable value. If carrying amount is more than recoverable value, then the asset is said to be impaired. What is the recoverable value? It's a higher of. It's a higher of two things. Number one, value in use, and number two, net selling price. इसका मतलब समझाना पड़ेगा मुझे. If an asset is impaired, the impairment loss should be charged to P&L account. But if the entity has excess revaluation reserve available, they can use the revaluation reserve to write off the impairment loss first, balance towards P&L. करेक्ट. ये एग्जाम में 3 बार आकर 4 बार आकर गया है, बहुत ओल्ड में भी आके गया है, अभी एएटएम में भी आया था, रिवैल्यूएशन रिजर्व के साथ आया था. तो आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करना पड़ेगा. समझो आया था नवंबर में ना, पर फिगर्स में 600 करोड़ में दिया है और अरे वो तो रिवर्सल का सम था इस बार. हाँ, पर एडजस्टमेंट में फिर वो लोग ने लैक्स में दिया और इधर करोड़ में दिया है, तो वो कन्वर्ट करते बैठना पड़ा. अच्छा तो बहुत टाइम गया था. 5 मार्क्स.
नॉट्स के लिए सेकंड क्वेश्चन ही है अच्छा, बाय द वे इसका हायर तुम्हारा रिकवरेबल वैल्यू डेट कंपेयर विथ कैरिंग अमाउंट, और अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो इम्पेयरमेंट लगेगा, कम है तो नहीं लगेगा। Impairment loss is equal to what? कैरिंग अमाउंट Carrying माइनस amount Recoverable value. now see here, अगर आपका कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है रिकवरेबल वैल्यू से तो आपका इम्पेयरमेंट होगा। बस रिकवरेबल वैल्यू आइदर वैल्यू इन यूज़ और नेट सेलिंग प्राइस। व्हाट इज वैल्यू इन यूज़? एसेट को यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आएगा ना उसका, ऑपरेशंस का, वो वैल्यू इन यूज़। ये जो प्रेजेंट वैल्यू आया था ना कैलकुलेट करने को, वो उसमें उन्होंने वैसे डाला। सुनो, वैल्यू इन यूज़ में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा, टैक्सेशन में नहीं आएगा, प्री टैक्स, तो डिस्काउंटिंग रेट भी प्री टैक्स रहेगा आपका, करेक्ट। साल्वेज वैल्यू भी लेने का, पीवी वैल्यू इन यूज़ के अंदर। व्हाट इज नेट सेलिंग प्राइस? नेट सेलिंग प्राइस का मतलब आज का सेलिंग प्राइस कितना है उसका, एक्सपेंस माइनस करके। अगर आज मैं बेचूंगा एसेट को तो रिपेयर करना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, वो नेट करके जो है नेट सेलिंग प्राइस, करेक्ट, दैट इज नेट सेलिंग प्राइस। उसका हायर लेने का, उसको कंपेयर करना है कैरिंग अमाउंट से। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आकर गया है, वो लोग एक कैश फ्लो का लिस्ट देते हैं, उसका आपको पीवी निकालना है। डोंट फॉरगेट टू कैलकुलेट द पीवी ऑफ सैल्वेज ऑल्सो, पीपल मिस इट। और यहाँ पर नेट सेलिंग प्राइस निकालना है, मीन्स आज का सेलिंग प्राइस कितना है। फॉर एग्जाम्पल आई हैड गॉट अ फीमेल बफेलो, उसका मुझे इम्पेयरमेंट निकालना हो, एग्जाम्पल, उसका मेरे बुक्स में वैल्यू कितना है 20,000 कैरिंग अमाउंट। लेकिन बफेलो को दो यूज रहेंगे, either I can keep the buffalo and get milk from the buffalo and take the present value of all the milk cash flows, or I can sell the buffalo in the market and get some huge capital value, उसका हायर ले लेगा, हो गया। मशीन का इम्पेयरमेंट करना है मेरे को, मशीन का या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम लूंगा या तो मशीन की सेलिंग प्राइस लूंगा। So present value of income plus the present value of the salary. This value in use nothing but a present value of the operating cash flows plus present value of all the years whatever the assets operate and plus the present value of salvage, कैपिटल बजटिंग के जैसा है। एक ही फर्क है कि इसमें डेप्रिसिएशन और टैक्स नहीं आएगा बस, हाँ, उसमें इंटरेस्ट भी आता है, वो भी नहीं। इंटरेस्ट भी नहीं आएगा क्योंकि योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूड्स इंटरेस्ट। समझ में आया आपको? गॉट इट? इस पे एक सम करेंगे, एक रिवैल्यूएशन वाले पे करेंगे और एक इस पे करेंगे, इनफ। फिर आगे और भी है, ऐसा नहीं कि पेमेंट खत्म हो जाता है। क्वेश्चन लिख दो आप, थोड़ा सा ब्रेक दे दो, एक कॉन्सेप्ट को ब्रेक दे दो। ये आपका स्टेज 1 है, स्टेज 2 अभी आएगा। लिखो, इसके क्वेश्चन लिखो, ये एग्जाम में आता है बहुत। ए लिमिटेड परचेज एन एसेट फॉर 1 लाख, ए लिमिटेड परचेज एन एसेट फॉर 1 लाख, साल्वेज जीरो, साल्वेज जीरो, zero on 1/4/2015, on 1/4/2015, 2015, करेक्ट। लाइफ दिया मैंने आपको, लाइफ 10 years,
At the end of second year, at the end of second year, asset was upward revalued. The asset was upward revalued by 12,000, 12,000, 12,000. On, next sentence, on एक मिनट, हाँ, on 1/4/2018, 19, on 1/4/2019, 1/4/2019, correct? The asset was tested for impairment, TESTED, tested for impairment. The recoverable value is 65,000. Pass accounting entry for impairment loss. Pass accounting entry for impairment loss. अब ऐसे वाला एक सम सॉल्व करेंगे, हायर वाला. क्वेश्चन नंबर 2. Write down. Jupiter Limited purchase an asset on 1/4/2015 for 6 lakhs, 6 lakh. Full stop, next sentence. As on 1/4/2018, the carrying amount is उसका कॉस्ट कितना था? 5,20,000. And remaining life 6 years. Next point, right now, next slide. Estimated salvage 50,000. Estimated salvage 50,000 रुपया, 50,000. नेक्स्ट लाइन में लिखो, आपको पहला डेट 2015 वाला दिया, फिर दूसरा डेट कौन सा दिया? 1/4/18 दिया ना. As on, next line में लिखो, as on 1/4/2019, as on 1/4/2019, 19, the selling price of the asset is estimated to be, the selling price of the asset, estimate में लिखो, the selling price of the asset is 4 lakh. Commission to sell 10%. Next line में लिखो, expected cash flows from the asset, year 1 75,000, year 2 80,000, year 3 60,000, 75 80 60, year 4 40,000, year 5
50,000, ईयर 5 50,000, ये कैश फ्लो है। टैक्स रेट 30%। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस ऑन 1/4/2019। कैलकुलेट impairment loss on 1/4/2019 19। चलो पहला सम करते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट सम में व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट? 1 lakh डेट 1/4/2015 15, देखो 1/4/2015 at what price you purchase the asset? 1 lakh 1 लाख। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 1 लाख। अच्छा सैलवेज दिया है इसमें? नहीं दिया, जाने दो। अच्छा अभी नेक्स्ट स्टेज क्या है? इम्पेयरमेंट का डेट कौन सा आ रहा है? देखो सेकेंड ईयर में रिवैल्यूएशन है भाई 2 साल बाद रिवैल्यूशन। एट द एंड ऑफ द अच्छा इसका मतलब आपने डेप्रिसिएशन किया होगा 15-16 का, है कि नहीं? एग्रीड? अच्छा और एक डेप्रिसिएशन किया होगा सर? हाँ, विदाउट रिवैल्यूएशन। यस, टेल मी हाउ मच डेप्रिसिएशन वाज द लाइफ ऑफ द एसेट? 10 years 10 years. So easily I can divide it by 10,000 and I can say there is no salvage value. So my book value is the remaining amount, correct? इसका मतलब the day when I am going to revalue my asset book value is 80,000 carrying amount. Agreed? अच्छा ये कौन सा तारीख है सर? 1/4/2016-17, करेक्ट ना? और एक बात हमेशा रखना, वही स्टेज पर रुक जाने का जहाँ इम्पेयर रिवैल्यू हो रहा है, डेप्रिसिएशन करते रहने का एक साथ, उसमें हर साल नहीं करना है आपको, करेक्ट? स्टॉप हियर बिकॉज रिवैल्यूएशन हो रहा है। शैल आई प्रोसीड? सी हियर नाउ 2017 में क्या होगा देखो, फिर डेप्रिसिएशन आएगा। अच्छा अभी इम्पेयरमेंट कब हुआ बताइए? से रिवैल्यू हाँ करेंगे अच्छा रिवैल्यू हुआ, क्या है रिवैल्यूड फिगर? अपवर्ड बाय 12,000 डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड हुआ, चल रिवैल्यूएट 12,000 ऊपर हो गया आपका। सर अगर ऐसा बोले तो 10% अपवर्ड, तो 8,000 पे 10% ऐड करना है 80,000 पे, नेट ब्लॉक पे लेने का, ग्रॉस ब्लॉक पे रिवैल्यूएशन नहीं ले सकते आप। इट्स 92,000 नाउ, आई होप यू गॉट इट। इसमें रिवाइज करेंगे ऑन द सेम डेट 1/4/2017। एग्रीड? Now, do you agree with me? I will have the reserve, revaluation reserve also. Correct? Which is 12,000 rupees. समझ में आया? Why I am writing revaluation? I should know the depreciable portion now. क्योंकि आप जब डिप्रिशिएट करोगे तो कुछ पोर्शन रिवैल्यूएशन रिजर्व से भी लेस होगा, कुछ पीएनएल में जाएगा, करेक्ट ना? अगेन आई विल इम्पेयर द एसेट, नेक्स्ट स्टेज व्हाट इज इम्पेयरमेंट डेट? सो मेरा एक 1/4/2018 को और एक डेप्रिसिएशन आएगा नहीं इम्पेयरमेंट डेट क्या है वो? 1st April 1st April 19 तो एक और डेप्रिसिएशन आएगा ऐसा, करेक्ट? अगर 2 आती ना तो इकट्ठा डेप्रिसिएशन ले लेता मैं। तो कैन आई डेप्रिशिएट वन मोर टाइम 2017-18, है ना? अच्छा नाउ व्हाट इज माय डेप्रिसिएशन? हाउ मेनी इयर्स आर पास्ड अवे? 2 years आर पास्ड अवे, रिमेनिंग इयर्स आर 8 years, कैन डिवाइड बाय 8, करेक्ट? डेप्रिसिएशन कितना आएगा आपका? बोलो 11,500 टोटल एक साल का ही आएगा हाँ 7,500, उल्टा ज्यादा डेप्रिसिएशन है। 11,500 हाँ वो बराबर 11,500 बराबर 7,500 नहीं 11,500, ये डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे आप? टोटल द कैरिंग अमाउंट नाउ बोलो 80,500 80,500। लेकिन एक साल का आपका डेप्रिसिएशन जब मशीन से लेस होगा तो 10,000 का डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा और बाकी डेप्रिसिएशन आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व से लेस होगा। बिकॉज व्हेन यू रिवैल्यू द एसेट जब डेप्रिशिएट होता है उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व भी कम हो जाता है प्रोपोर्शनली। एज 10 में पढ़ा था आपने, तो ये कितना लेस होगा सर? इसको 8 से डिवाइड कर दो, मालूम पड़ जाएगा, डिवाइड बाय 8 कितना आएगा देखो 1,500, 10,000 पहले का और एक्स्ट्रा 1,500 का डेप्रिसिएशन आया, मशीन से पूरा लेस होगा और पीएनएल में 10,000 जाएगा, बाकी रिवैल्यूएशन रिजर्व से लेस करना है। रिमेनिंग अमाउंट बोलो कितना आएगा? 10,500। Because on date when you use revaluation reserve, you should know the revaluation reserve balance also. It get depreciated proportionately. Now can I compare my carrying amount with the recoverable value? Agreed? समझे कि नहीं? ये सेट का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं आपको बोलता हूँ। तो 1/4/2018 का मेरा फ्रेश डेट आ गया, आपका नया कैरिंग अमाउंट, करेक्ट? गिव मी द रिकवरेबल वैल्यू हाउ मच?
कितना रिकवर वैल्यू तुम्हारा? It is tested for impairment on 1st April 2019. हाँ 19 और ही डेप्रिसिएशन आएगा फिर तो। तुमने बोला एक ही साल है बोला इसलिए I'll deduct one more depreciation. Agreed everyone? I'll deduct one more depreciation. Is this clear? One more depreciation. Straight line है ना? Do you agree with this? अब कितना बैलेंस बचेगा बताओ माइनस करके? हाँ 69,000. यहाँ कितना बचेगा? 8,000. 9,000. Can I compare with the book value, recovery value now? कितना recovery value? 65,000. Which is higher of two things: net selling price, correct, or value in use. समझे बेटा? कितने का इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है देखो आपका, डेफिशिएंसी कितने का आ रहा है, और ये कितना, ये तो इतना ही रहेगा 9,000 तुम्हारा. अब इम्पेयरमेंट की एंट्री क्या आएगी देखो, ये देखो इम्पेयरमेंट की एंट्री क्या आएगी, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट कितना 4,000, और कैन यूज रिवैल्यूएशन रिजर्व, यस 4,000 पूरा यूज कर सकता हो, पीएनएल पे कुछ भी यूज नहीं होगा तुम्हारा, बच गया आप, करेक्ट. एग्रीड विद दिस नाउ भाई, समझे? इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन भी कवर हो गया आपका, और एक सम बाकी कर लेता हूं फिर आप जाओ आज के लिए, कल थोड़ा सा इम्पेयरमेंट करा देता हूं. और सर ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस बचा, ये कैलकुलेशन भी एग्जाम में देनी पड़ती है? हाँ देना पड़ेगा, ये तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. But do they specifically ask in the No, question? they'll ask, they'll test your knowledge whether you can use the revaluation reserve properly or not. Automatically indicates you have to work out somewhere. Orally you can't manage. Because when you depreciate an asset which is revalued, some portion of depreciation will be charged towards the revaluation reserve also. Because your asset is increased by revaluation. Check out. When you depreciate the asset. तो जितना रिवैल्यूएशन से इंक्रीज हुआ उतने पोर्शन का डेप्रिसिएशन हाँ हाँ, और बाकी पीरियड में जाएगा. This is a very common question they ask in the exam. PS10 में सब पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है. मेरे पास नहीं पढ़ा था ना. Mostly when a student learn under me, I have just seen this, mostly they clear the exam. पढ़ते हैं ना वो जाके घर पे कुट के तो पास होते ही वो. आपके मुंह में फिर तो यू हैव टू जस्ट अज्यूम. मैं जानता हूँ, मुझे रैंडमली एक बच्चा मिला क्रैश कोर्स का. मिक्स फ्रूट कहता और चॉकलेट. नहीं, आई गॉट अ स्टूडेंट रैंडमली टुडे, ही गॉट 80 मार्क्स, 78 मार्क्स इन एफआर. अब आज मिला मेरे को, इनडायरेक्ट टैक्स के लेक्चर में मिला मेरे को. एक और क्वेश्चन बाकी देख लें. हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई इम्पेयरमेंट का? हाँ सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. अभी हम लोग ना इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करते हैं वैल्यू इन यूज. हाँ अभी कैलकुलेट क्या है, अभी तो रिकवर वैल्यू आपको रेडीमेड दिया था, वो उठा के लिख दिया आपने, बड़ा कैलकुलेट भी करते हैं. दैट यू शुड नो. स्टार्ट करें. लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ प्लीज. कैन डिक्टेट द क्वेश्चन टू मी प्लीज, क्योंकि मेरे पास वो क्वेश्चन को डिक्टेट किया हूँ मैंने. Jupiter Limited purchased an asset on 1st April 2015 for 6 lakhs. As on 1st April 2018, the carrying amount is 5,20,000.
And the remaining life is 6 years. वहां से रिमेनिंग लाइफ दिया, पहले का रिमेनिंग लाइफ दिया ही नहीं, तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। इसका मतलब एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 में इज गिवन यू 1,415 का एक कॉस्ट दिया हुआ है, बराबर है, आई कैन टेक इट। कितना 6 लाख का कॉस्ट है, Yes. 6 लाख का कॉस्ट है। नाउ व्हाट हैपेंड सडनली जंप टू 2018, बीच का कुछ पता ही नहीं क्या डिप्रेशन क्या रेट पे, तो जाने दो ना, हमको तो नेक्स्ट कैरिंग अमाउंट ही चाहिए। वेरी जंप डायरेक्टली टू 1/4/2018 8, चलो कोई बात नहीं। कैरिंग अमाउंट कितना दिया, कैरिंग अमाउंट 5,20,000 5 लाख। Now do you agree with me this block is provision for depreciation? Agreed or not? कितना आएगा ये ब्लॉक, 80,000। Got it? अब अपना काम शुरू, डेप्रिसिएशन अब हमारे हाथ में है। वो रिमेनिंग लाइफ 6 years बस, दैट इज इंपॉर्टेंट। साल्वेज 50,000 हाँ, ये इग्नोर नहीं करने का, मतलब पूरा सब गलत हो जाएगा आपको, ठीक है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट इवेंट, नेक्स्ट इवेंट क्या है उसका, रिवैल्यूएशन तो है ही नहीं सब, April 19, the selling price of the asset is 4 lakh. यानी इस दिन वो इम्पेयरमेंट चेक कर रहे हैं आप, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है Commission to sell is 10%. 2019, Yes. तो एक साल बाद ही एक ही डेप्रिसिएशन आएगा। 18-19, yes. Now do you agree with me, please, do you agree with me? I'll start depreciation for the balance period now, 5,20,000, don't ignore 50,000 salvage, divided by how many years, हाँ remaining 6 years 6 years, remaining ले लेने का स्ट्रेट लाइन कितना आएगा, डेसिमल में आएगा, कितना है 4 78,333 एग्रीड विद हो जाए 83 जाने दो, दिस इज माय बुक वैल्यू नाउ, करेक्ट। कौन सी तारीख है भाई, 149 कैरिंग अमाउंट, रिमेनिंग हाउ मच, 441 441 667, करेक्ट। अच्छा, अब नाउ कैन आई स्टार्ट बाय रिकवरेबल वैल्यू, which will be higher of two things now. Number one, higher of what, value in use or net value in use or net selling price, correct। इनका हायर रहेगा, ये निकालना पड़ेगा अभी दो। फर्स्ट विल कैलकुलेट वैल्यू इन यूज, कैश फ्लो ईयर 1, कैश फ्लो ईयर 2, कैश फ्लो ईयर 3, कैश फ्लो ईयर 5, 5 कैश फ्लो बचे, एक तो इस साल खत्म हो गया 6 में से। बोले फर्स्ट ईयर कैश फ्लो 75,000, सेकेंड 80 80, थर्ड 60 फोर्थ 40 फिफ्थ, 50 एक गड़बड़ मत करना मेहरबानी करके, 50 में सैलवेज भी आएगा 50, यानी इसको 1 लाख लिख सकते हैं आप। इंक्लूड कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 50 एंड सैलवेज ऑफ 50। एक काम करो ना, पी फैक्टर 11% लिखो, 11% पी फैक्टर नीचे लिखो, पी फैक्टर 11%। वेरी डेंजर है, सैलवेज भूल सकता है बच्चा यहाँ पर। चलो 3 फैक्टर फिर ले लो पी फैक्टर के, 1 2 3 4 5, 3 फैक्टर्स हाउ मच, 0.0 0.900 राउंड ऑफ करके बोलिए 812 731 659 593 मल्टीप्लाई करके बोलो कितना, पीवी ऑफ कैश फ्लो।
कितना आ रहा है? Two three two double 330 total. How much? No wait. No wait. पीवी तो बोलो कितना आएगा? फर्स्ट केस में पीवी कितना है? 67,500. सेकेंड? 62,960. थर्ड? 43,860. 26,360. 29,650. 15 and 300. 29,650. 29,650. ठीक है, एड अप एवरीथिंग, पीवीज मिल जाएगा सबका समेशन. Two 61,980. 2,61,080. 980. Yeah. Please check. Please wait. तो ये आया आपका 2,61,000. The net selling price. What is the selling price of the machinery on this date? On this date, huh? Not salvage. 4 lakh and 10% commission. 4 lakh minus expenses, net है ना 40,000. कितना आएगा? 3 lakh 60,000. Correct? Which is higher? This is higher. Correct? तो my impairment loss will be carrying amount minus recoverable value. Correct? It is 4,41,667 minus 3,60,000. Agreed? कितना डिफरेंस आ रहा है देखो? 4,41,667 minus 3,60. कितना डिफरेंस? 81,667. 81 667. impairment loss. Okay.